শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 59 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 5.59 অনওয়ার্ডস। 59 নম্বর শ্লোক। জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড় রূপা, জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড় রূপা, শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা, শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা। যেহেতু প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় ও অচেতন, তাই তা জড় জগতের কারণ হতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই জড় নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিতে তার শক্তি সঞ্চার করে কৃপা করেন। ऑल अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? अगला श्लोक। কৃষ্ণ শক্তি প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ, কৃষ্ণ শক্তি প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ, অগ্নিশক্তি লৌহ জৈছে করয়ে জারণ, অগ্নিশক্তি লৌহ জৈছে করয়ে জারণ। অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ, অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ, প্রকৃতি কারণ জৈছে অজাগল স্তন। প্রকৃতি কারণ জৈছে অজাগল স্তন। শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি গৌণ কারণ হয়, ঠিক যেমন অগ্নির শক্তির প্রভাবে লোহা আগুনের মতো হয়ে যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। প্রকৃতি অনেকটা ছাগলের গলস্তনের মতো, কেননা তা থেকে কখনো দুধ পাওয়া যায় না। বহিরাঙ্গা মায়া শক্তি তাৎপর্য জগতের উপাদান রূপে প্রধান বা প্রকৃতি নামে পরিচিত এবং জগতের নিমিত্ত অংশে মায়া নামে পরিচিত। दो प्रकार था ना, दो उनका कार्य। জড়রূপা প্রকৃতি জড় জগতের প্রকৃত কারণ নয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ কারণ দর্শায় বিষ্ণু মহাবিষ্ণু সমস্ত উপাদানগুলিকে সক্রিয় করে। ওই জন্য হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। ওই জন্য भगवान डायरेक्ट कारण है, इनडायरेक्ट कारण माया देवी है। এইভাবে জড়া প্রকৃতি সমস্ত উপাদানগুলি সরবরাহ করার শক্তি লাভ করে বিকজ অফ মহাবিষ্ণু। কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত লোহা অন্য বস্তুকে দহন করতে ও তাপ দিতে সমর্থ হয়। জড়া প্রকৃতি লোহার মতো, কেননা শ্রী বিষ্ণুর সংস্পর্শে ছাড়া তার কার্য করার কোনো স্বতন্ত্রতা নেই। কিন্তু কারণোদক্ষায় বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারিত হলেই প্রকৃতি জড় সৃষ্টি উপাদানগুলি সরবরাহ করার যোগ্যতা অর্জন করে। জড়া প্রকৃতি स्वतंत्रভাবে जड़ा उपादानগুলি সরবরাহ করতে পারে না, अपने आप नहीं कर सकता है। जब तक महाविष्णु दृष्टिपात नहीं करेगा तब तक वो रॉ मटेरियल से कुछ नहीं कर सकती है। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রী কপিল দেব শ্রীমদ্ ভাগবতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, যথোল্লোকাদি স্ফুল্লিঙ্গাদ ধূমাদাপি শশভবাৎ অপাতেনা ভীমতাদ যথাগ্নি পৃথক গুলমুকাত। যদিও ধূম মানে ধোঁয়া, জ্বলন্ত কাষ্ঠ মানে लकड़ी और स्फुल्लिंग एकत्र अग्नि उपादान। स्फुल्लिंग माने छोटे छोटे चिंगारी। तो अग्नि से क्या क्या आ रहा है? धुआं आ रहा है, आग एकदम पूरा उज्ज्वलित कर दिया लकड़ी को, और तीसरा क्या, चिंगारी भी आ रहा है। किंतु लेकिन তাহলেও জ্বলন্ত কাষ্ঠ আগুন থেকে ভিন্ন এবং ধূম জ্বলন্ত কাষ্ঠ থেকে ভিন্ন, सब अलग अलग चीज है।
পঞ্চমহাভূত মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ধূমের মতো, জীব স্ফুল্লিঙ্গের মতো এবং প্রধান রূপে প্রকৃতি জ্বলন্ত কাষ্ঠের মতো। তারা সকলে ভগবানের থেকে শক্তি লাভ করেই स्वतंत्र परिचय प्रदर्शन करें। तो मटेरियल एलिमेंट्स अलग है, जीव अलग है और माया देवी भी अलग है, सब सेपरेट। पक्षान्तरे परमेश्वर भगवान समस्त सृष्टिर मूल। जरा प्रकृति कोनो किछु सरबराह करार क्षमता तखन थाके ना, तखन थाके যখন তা परमेश्वर भगवान दृष्टिपातेर द्वारा सक्रिय है। ठीक है, जब भगवान दृष्टिपात करता है उसके बाद प्रकृति को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है मटेरियल इंग्रेडिएंट्स को लेकर जरा प्रकृति को सृष्टि करने का। तो भगवान की दृष्टि के बिना वो कुछ नहीं कर सकती है अकेला। सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये अग्नि विष्णु के समान बताए हैं। हाँ, क्योंकि अग्नि, क्योंकि वो एग्जाम्पल में अग्नि की वजह से काट लाल हो जा रहा है संस्पर्श में आने से, और सक्रिय हो जा रहा है। काट अकेला अकेला गर्म हो सकता है क्या? नहीं। वैसे प्रकृति अकेला अकेला सब कुछ कर सकता है क्या? रॉ मटेरियल से कुछ नहीं कर सकती है। भगवान जब संस्पर्श में आएगा, कारणोदक्ष विष्णु दृष्टिपात करेगा, उस समय वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, वो एग्जाम्पल सेट किया। एनालॉजी समझना पड़ेगा किसको क्या मैचिंग हो रहा है। सबको समझ में आई एनालॉजी? आगे बढ़े। पुरुषेर बीर्य गर्भे संचार हওয়ার ফলে স্ত্রী যেমন সন্তান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তেমনি মহাবিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় প্রকৃতির জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। ये आगे भी आया ये सब। তাই প্রধান কখনই পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতা থেকে स्वतंत्र होते पारे ना। देखिए फिर से सेम चीज कितना बार आ रहा है। फिर बाद में ज्योति माता जी पूछेगी, प्रभु जी इतना बार क्यों बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं क्यों? সেই সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে, ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম। প্রকৃতি বা সমস্ত জড়শক্তির ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্য করে। সমস্ত জড় উপাদানগুলি উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, সোর্স ইজ শ্রীকৃষ্ণ। তাই নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জড়া প্রকৃতিকেই এই সমস্ত উপাদানগুলির উৎস বলে মনে করে তা সর্বতভাবে ভ্রান্ত। ठीक है, ये नास्तिक जो सांख्य योगी है, गलत वाला, नेगेटिव वाला कपिल, ओरिजिनल कपिल मुनि नहीं, नेगेटिव कपिल मुनि, तो उन लोग का यही लगता है। क्या लगता है कि प्रकृति से सब कुछ आया है। ठीक है, भगवान से कुछ नहीं है, प्रकृति से सब कुछ आया है, ऐसे उन लोग को लगता है। মানে প্রকৃতি যার ভগবান। তা অনেকটা ছাগলের গলায় স্তন সদৃশ मांस पिंडेर থেকে दूध दोहन करार चेष्टा प्रचेष्टार मतो। आई डोंट नो, छागल का गला में क्या है? स्तन सदृश कुछ। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? निपल जैसे कुछ है क्या छागलेर गलाय? वो जो फुला रहता है ना गला, वही कुछ छागल का, कुछ छागल का होता है। अच्छा, हाँ। कोई उससे अगर कुछ ऐसे ऐसे करके करिएगा कुछ दूध निकलेगा क्या गला में? गला से कुछ नहीं निकलेगा, वैसे ही कुछ। माने गलत धारणा। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सरोज कृष्ण माता जी, सत्यभामा माता जी। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी समझ में आ रहा है। प्रभु जी छागल माने बकरी ना? समझ में आ रहा है प्रभु जी। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता है। 62 नंबर श्लोक। माया अंशे कोहि तारे निमित्त कारण, মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ, সেই নহে যাতে কর্তা হেতু নারায়ণ। যেই নহে যাতে কর্তা হেতু নারায়ণ। প্রকৃতি মায়া অংশ হচ্ছে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, তা প্রকৃতি কারণ হতে পারে না, কেননা মূল কারণ হচ্ছেন শ্রীনারায়ণ। সেম চিজ। ঘটের নিমিত্ত হেতু জয়ছে কুম্ভকার, ঘটের নিমিত্ত হেতু জৈছে কুম্ভকার, হয়েছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার। হয়েছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার। মাটির তৈরি ঘটের কারণ যেমন কুম্ভাকার, তেমনি জড়জগতের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন প্রথম পুরুষ অবতার।
কারণোদক্ষায় বিষ্ণু। কৃষ্ণকর্তা মায়া তারে। এখন जगत तेमনি जड़ जगत सृष्टिकर्ता হচ্ছেন प्रथम पुरुषोत्तम। जड़ जगत का सृष्टिकर्ता बहुत बहुत लोग, अब कोई बोल सकता है संकर्षण आया था ना आगे, संकर्षण एक्चुअली जगत का सृष्टिकर्ता। क्या अभी कल भी आया था नारायण হচ্ছে जगत सृष्टिकर्ता। उसलिए मैं क्या हाथ बोला, क्या एग्जांपल दिया था याद है? कोई बोला ये आरकेडी ये चश्मा का बक्सा उठाया, फिर कोई बोला नहीं नहीं आरकेडी का दाहिना हाथ ये चश्मा का बक्सा उठाया, फिर कोई बोला नहीं 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 आरकेडी का दाहिना हाथ का उंगलियां इस बॉक्स को उठाया। हाँ, तो वैसे ही तीनों ही राइट है ना। वैसे ही कोई बोलेगा संकर्षण सृष्टि करता है जड़ जगत। कोई बोलेगा नहीं 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 बलराम जी है। कोई बोलेगा नहीं 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 नारायण है। कोई बोलेगा नहीं 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 पुरुषोत्तम महाविष्णु है। चारों ही राइट आंसर है ना। पकड़ तो वजीश को। हरे कृष्णा बाबू जी, तो पिछला श्लोक में तो बताया जो नारायण करता है कागन है, हाँ मूल कागन। अभी बोल रहे पुरुष अवतार कर्णोदक्षाय। इसलिए तो मैं अभी एग्जाम्पल दिया। जैसे मैं बोलूँ आरकेडी बक्सा को उठाया, गलत है क्या? नहीं। तो बोले आरकेडी का डायना हाथ बक्सा को उठाया, वो गलत है क्या? नहीं। आरकेडी का डायना हाथ का उंगली और बक्सा को उठाया, रॉन्ग है क्या? तीनों ही राइट है। समझ में आया प्रभु? यस। जी, अब समझ में आ गया। सेम पर्सन वही है, खाली उसका नाम अलग अलग आ जाएगा। सब तो लाइन में ही है, सब एक दूसरे का कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। पर कभी कभी तो कोई अगर बोला कि मेरे पिताजी की वजह से मैं हुआ हूँ, तो सही है। कोई अगर बोला मेरा दादाजी की वजह से मैं हुआ हूँ, वो भी सही है। कोई अगर बोला मेरा परदा दादाजी की वजह से मैं हुआ हूँ, वो भी सही है ना। परदादाजी नहीं रहता तो दादाजी नहीं होता, दादाजी नहीं होता तो पिताजी नहीं होता, पिताजी नहीं होता तो मैं नहीं होता। ठीक वैसे ही नारायण नहीं होता, सेकंड वाला वीएसपी नहीं होता, संकर्षण नहीं होता। सेकंड महाविष्णु महासंकर्षण नहीं होता तो फिर आगे पुरुष अवतार नहीं होता, पुरुष अवतार में फिर कर्णोदक्षाय विष्णु नहीं होता। ऐसे ही। हाँ बोलिए, करना रहता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु कभी कभी तो हम ये भी पढ़ते ब्रह्मा इज द क्रिएटर। हाँ वही तो सेम। नीचे कितना नीचे लाइन में होगा सोचिए, ऊपर से देखिएगा तो ब्रह्मा जी कितना नीचे है, टर्शियरी क्रिएटर है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं मनु एंड शत्रुपा और क्रिएटर, ये भी सुनते हैं ना, ये भी सुनते हैं ना, मालूम है ना। मनु शत्रुपा से हम लोग आए, इसलिए मानव बोला जाता है। यस। हाँ, और नीचे जाइए, कभी कभी हम लोग ये भी सोचते हैं माता पिता हम लोग का क्रिएटर है, सुनते हैं ना। तो नीचे जाइए सब क्रिएटर है वैसे। पर मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल थिंक ब्रह्मा इज द क्रिएटर। वो शायद महाविष्णु कर्दक्ष विष्णु के बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट देम। बताइए हमको, आप में से कौन कौन इस्कॉन में आने के आगे महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में नहीं कुछ नहीं सुना था, खाली विष्णु मालूम था, उसके ये सब कुछ नहीं मालूम था, 3 प्रकार एंड ऑल नहीं। ओके, अगला श्लोक कहाँ तक? अभी कितना होगा नंबर? 64 बोलो। कृष्णकर्ता माया तार करे न सहाय, কৃষ্ণকর্তা মায়া তার করে না সহায়, ঘটের কারণ চক্র দণ্ডাদি উপায়। ঘটের কারণ চক্র দণ্ডাদি উপায়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা এবং মায়া কেবল সৃষ্টি কার্যে তারকে সাহায্য করেন। ঠিক যেমন কুম্ভকারের চক্র হতো না এবং অন্য সমস্ত যন্ত্র ঘট তৈরির ব্যাপারে কুম্ভকারকে সাহায্য করে। দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান, দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান, জীবরূপ বীর্য তাতে করেন আধান। জীব রূপে বীর্য তারে তাতে করে না আধান। দূর থেকে পুরুষ অবতার মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং এভাবেই তিনি জীবরূপ বীর্য तार गर्भे संचार करें। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बीर्ज वाला कौन है? ये सब जो भगवान से विद्रोह किया वही बीर्ज है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उन लोग को नीचे भगवान नीचे भेजने के लिए ये सब करते हैं। अभी बीर्ज दिया
इसके बाद ढक्कन कौन पहनेगा, कपड़ा कौन पहनेगा, ब्रह्मा जी, तुरसिला योनि में। ठीक है, जो जैसा बीज उसी से कपड़ा, कोई पशु तुल्य तो पशु वाला कपड़ा, अलग अलग। ठीक है, मानु शत्रुपा के थ्रू से। एक अंगा भाषे करे मायाते मिलन, एक अंगा भाषे करे मायाते मिलन, माया হইতে জন্ম তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ, মায়া হইতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ, তার দেহের প্রতিবিম্বিত জ্যোতির সঙ্গে মায়ার মিলন হয় এবং তার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ক্লিয়ার? तार देहर प्रतिबिंबित, इसका मतलब प्रभु भगवान जब ये भगवान की बोले ना कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्ष विष्णु वो भी भगवान भी है, भगवान भी है। वो जो दृष्टिपात करती है तो उनका देहेर प्रतिबिंबित ज्योतिर संगे मायार मिलन है, इट्स लाइक यूनियन होता है दोनों का, एवं तार असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि है, अपने शरीर से बहुत ब्रह्मांड सृष्टि होता है। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके, तात्पर्य ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कुंभकार फिर कारणोदक्ष से उसको किया कुंभकार। हाँ, वो तो एनालॉजी है। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए जो मिट्टीकार है, कुम्हार बोलते हैं। हाँ, कुम्हार है, तो उसको क्या लगेगा, उसको मिट्टी लगेगा, थोड़ा पानी लगेगा, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, थोड़ा एक चक्की लगेगा ना गोल गोल वाला, तो दीज आर ऑल रॉ मटेरियल्स, उपादान। ठीक वैसे ही 24 उपादान लगेगा, प्रकृति लगेगा भगवान को बनाने के लिए, जीवों को भेजने के लिए। हाँ, हिरण्मय गौरांग प्रभु, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है, वो कुंभकर्ण जो बनाता है उसमें हाथ से घुमाते हैं, सॉरी, हाथ में घुमा देता है तो घूमता है। लाठी से, अच्छा लाठी से, मैनुअल है, सॉरी। ओके, तात्पर्य বৈদিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বদ্ধজীবের দৃষ্টি পথে প্রকাশিত জড়জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে, আর নাস্তিকদের বিচার হচ্ছে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতি থেকে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি তিন ভাবে প্রকাশিত: চিৎ শক্তি, জড়শক্তি ও তটস্থা শক্তি। পরমেশ্বর ভগবান তার চিৎ শক্তি থেকে অভিন্ন। চিৎ শক্তি সংস্পর্শেই কেবল জড়শক্তি সক্রিয় হতে পারে এবং তখন অনিত্য জড়শক্তি সক্রিয় বলে মনে হয়। বদ্ধ অবস্থায় तटस्था शक्ति जात जीव समूह चित शक्ति और जरा शक्तिर मिश्रण, हम लोग मिक्स है, चित शक्ति और जरा शक्ति। चित शक्ति क्यों मिक्स है? क्योंकि हम लोग में आत्मा है। जरा शक्ति क्यों मिक्स है? क्योंकि ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, उसी हम लोग मिक्सचर वाला आदमी है। तटस्था शक्ति मूलत चित शक्तिर अनुगत, किंतु जरा शक्तिर प्रभावे जीव समूह स्वरूप विस्मृत हয়ে अनादिकाल धरे जड़ जगते भ्रमण करছে। अभी तक क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ, हर एक सेंटेंस? मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, सब देखिए, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अगला पैराग्राफ, चिन्मय स्तरे तार स्वतंत्रेर अपव्यवहार करार फले जीव जड़ जगते बंधने आबद्ध হয়, কেননা তখন জীব চিৎ শক্তির সঙ্গে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু জীব যখন পরমেশ্বর ভগবান অথবা তার শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত হয় এবং তার ফলে সে নিত্য জ্ঞান ও আনন্দের পরম মঙ্গলময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। यस निगुणा निमरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, बद अवस्था का कारण आध्यात्मिक स्तर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि सिर्फ बद अवस्था, इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मैंने भगवान के धाम में स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया। जीव सोचने लगा कि भाई मेरे को क्यों नहीं सेवा कर रहा है, सब भगवान को सेवा कर रहे हैं, हम लोग सब उन्हीं को सेवा करेंगे क्या? ये इसीलिए करते उधर होता है क्योंकि बद्ध अवस्था, क्योंकि भगवान हालांकि जीव मुक्त अवस्था है,
लेकिन तटस्थ शक्ति है ना, तो ये सब हो सकता है गड़बड़। यस, पंकज नेता, राजेश प्रभु। तो आध्यात्मिक स्तर में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बद्ध अवस्था में भी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हाँ एकदम, वो तो कंटिन्यू ही रहता है। हाँ, भगवान के धाम में भी रहता है, यहाँ भी रहता है। वहां भी व्यक्ति विद्रोह कर सकता है, यहाँ तो करते रहता है। তটস্থ জীব তার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করার ফলে যখন ভগবত সেবার প্রতি বিমুখ হয়, তখন সে নিজেকে ভগবানের শক্তিরূপে বিবেচনা না করে শক্তিমান বলে মনে করে। ও ছোটা মিনি ভগবান সোচতে আপনি আপকো। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফলে জীব জড়জগৎকে ভোগ করতে সচেষ্টা হয়। जो भक्त अपने स्थित पे है, माने अपने स्वरूप पे है, वो अपने आप को हमेशा भगवान का दास समझेगा और जो भी है भोग करने का प्रयास नहीं करेगा, भगवान को भोग कराएगा। कुछ भी। अच्युत करुणेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वहां पर लोभ रहता है क्या जीव के अंदर? हाँ, ये सब रहता है, लेकिन पॉजिटिवली रहता है। यहाँ जैसे हम लोग माने इंद्र तृप्ति का लोभ रहता है, वहां भगवान को इंद्र तृप्ति कराने का लोभ रहता है। अच्छा फल हुआ, कराने का रहता तो ठीक ही था तब तक, लेकिन जब करने का हो गया तभी ना दिक्कत हो गया। एकदम एकदम जड़जगत चित जगतेर विपरीत धर्मी। देखिए तो जो आप पूछा वही आ गया, विपरीत, एकदम विपरीत। यहाँ भी लोभ है, वहां भी लोभ है, लेकिन यहाँ वाला विकृत वाला रूप। चित शक्तिर प्रभावे जड़ शक्ति सक्रिय है। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি চিন্ময়, কিন্তু তা বিবিধভাবে ক্রিয়া করে। ঠিক যেমন বিদ্যুৎ শক্তির ভিন্নভাবে প্রয়োগের ফলে তাপের উদ্ভব হয়, আবার শীতলতার উদ্ভব হয়, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से एसी भी चलता है, हीटर भी चलता है। वैसे भगवान की शक्ति से जड़ जगत भी चल रहा है, चिन्मय जगत भी चल रहा है, अंतरंगा शक्ति भी चल रहा है, और उल्टा एकदम बहिरंगा शक्ति भी चल रहा है। জড়শক্তি হচ্ছে মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত চিৎ শক্তি। তাই জড়শক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণ তার চিৎ শক্তিকে অচিৎ শক্তিতে আরোপ করেন এবং তারপর তা সক্রিয় হয়। যেমন আগুনের মতো উত্তপ্ত হলে লোহা আগুনের মতো ক্রিয়া করে, চিৎ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হলে জড়াশক্তি সক্রিয় হতে পারে। अभी तक क्लियर है? अगला पैराग्राफ। অচেতন জড়শক্তির আবরণে যখন ভগবানের পরা শক্তি সম্ভূত জীব আচ্ছাদিত থাকে, তখন সে চিৎ শক্তির কার্যকলাপ বিস্মৃত হয় এবং জড়জগতে সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে জীব যখন চিন্ময় শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে অচেতন জড়শক্তির স্বতন্ত্রতা ভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। জড়স্তরে যা কিছু হচ্ছে তা সব হচ্ছে चित शक्तिर सहायताएं। अकेला कुछ नहीं कर सकता। अकेला पंचभूत वाला शरीर कुछ कर सकता है क्या? अकेला डेड बॉडी कुछ कर सकता है क्या? और जब तक चित शक्ति यानी जब तक वो आत्मा रहेगा तब तक वो कुछ कर सकता है। चित शक्तिर विकृत रूप जड़ शक्ति সবকিছু বিকৃতভাবে প্রকাশ করে এবং তার ফলে ভ্রান্ত ধারণা ও দ্বৈতভাবে উদয় হয়। ঠিক আছে, ये समझ में आया? ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। চিৎ শক্তির বিকৃত রূপ জড় শক্তি সবকিছু বিকৃতিভাবে প্রকাশ করে এবং তার ফলে ভ্রান্ত ধারণা गलत और দ্বৈত ভাবের উদ্ভয় হয়। দ্বৈত ভাবে डुअलिटीज। तो वो एक बार समझा के बोलिए ना। उष्ण, देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ नहीं द्वैत भाव, गरीब अमीर, ये सब धारणा होता है आउट ऑफ बिकॉज ऑफ माया। माया के वशीभूत होकर जीव जड़ जगत में ऐसे धारणाएं होता है, द्वैत भाव। इन द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज अद्वैत। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন জড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনুমান করে যে অচিত শক্তি अपना अपने सक्रिय है, अपने आप से कोई भगवान का कोई कार्य नहीं, अपने आप से
बिग बैंग थियरी कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन होकर जीव आ गया, ये आ गया, सब आ गया, 84 लाख हो गई। भगवान का कोई दरकार नहीं, भगवान का दृष्टिपात को, भगवान के इन्वॉल्वमेंट को उन लोग मानते ही नहीं है, फिलोसफिस्ट एंड साइंटिस्ट। এই ধারণার ফলে তারা পদে পদে নিরাশ হয়। ঠিক যেমন একজন মোহাচ্ছন্ন মানুষ ছাগলের গলদেশে অবস্থিত স্তনাকৃতি গলস্তন থেকে দুগ্ধ লাভের চেষ্টায় অকৃত কার্য হয়। ছাগলের গলস্তন থেকে যেমন দুগ্ধ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তেমনি জড় জাগতিক মতবাদের মাধ্যমে সৃষ্টির আদির কারণ সম্বন্ধে জানার সম্ভাবনা নেই। এই ধরনের প্রচেষ্টা কেবল অজ্ঞতারাই परिचायक। अकेला अकेला कुछ नहीं कर सकते प्रकृति। अकेला अकेला कोई लेडी भगवान को बच्चे को जन्म दे सकता है क्या? कुछ नहीं, उनको एक पुरुष लगेगा। वैसे ही प्रकृति अकेला अकेला कुछ नहीं, उनके लिए परमेश्वर का दृष्टिपात मस्ट है। यस माता जी। प्रभु जी, ये लाइन गया ना, वह भौतिक शक्ति से पैदा किए गए सिद्धांत प्रस्तुत करके सृष्टि के मूल कारण को समझने में सफल होगा, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। तो इस मतलब जैसे ये जितने भी ये साइंटिस्ट लोग जो थ्योरी प्रूफ की हैं, गैलीलियो, जितने भी समथिंग लाइक दैट है, तो फिर वो सब अज्ञानता का ही सूचक था। भौतिक मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, क्योंकि वो भौतिकता का आवरण लिए हुए। उन लोग को लगता है कि मेटल कॉम्बिनेशन सब कुछ आया है, इसको कंबाइन किया, ये हुआ। देखा लैब में देखेंगे, लैब में 2-4 चीज देख लिया तो उनको लगा कि सब कुछ वैसे ही हुआ है। लैब में देख लिया कि कोई एक साइंटिफिक कोई फॉर्मूला बताइए, केमिकल फॉर्मूला, H2SO4 और क्या है, वेलोसिटी वाला जो होता है, स्पीड का, जो फिजिक्स में कॉम्बिनेशन, 2-4 कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो उनको लगा कि देखो ये पानी H2SO4, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और SO4 ऑक्सीजन, ये सब मिलकर पानी आ गया। तो ये जब ऐसे हो गया तो शायद बाकी सब भी कुछ कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। ये जो भी प्रकृति में जो भी कुछ है कॉम्बिनेशन से, जीव भी कॉम्बिनेशन से हो जाएगा ऐसे। तो प्रभुपाद बताते थे, तुम लोग इतना बड़ा चीज बना लिया, एक घास का तिनका बना के दिखाओ। प्रभुपाद जी पूछते थे उन लोग से, तुम लोग इतना बड़ा महान मशीनरी बना दिया, एक घास का तिनका बना के दिखाओ, तो नहीं बना पाएगा। तो जो सिर्फ मटेरियल कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होगा। मतलब जो तुमको रॉ मटेरियल चाहिए सब दे देता हूँ तुमको, घास का तिनका के लिए बोलो, लेकिन घास का तिनका बना के दिखाओ, बना नहीं पाएगा। अगला पैरा, परमेश्वर भगवानेर अचित शक्तिके बला है माया। अचित शक्ति के माने चित शक्ति, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति, अचित उल्टा माया, जड़ा शक्ति, मटेरियल एनर्जी जड़ उपादानगुली सरबराह करे एवं जड़ सृष्टि प्रकाश करे, ता बद्ध जीवके प्रकृत सृष्टि तत्व सम्बन्धे जानते देওয়া না। কিন্তু জীব যখন জড়জাগতিক বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয় তখন সে জড়া প্রকৃতির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ক্লিয়ার? अगला पैरा, सृष्टिर आदि कारण হচ্ছে परमेश्वर भगवान। भागवत गीताয় 9ম অধ্যায় 10ম শ্লোকে ভগবান বলা হয়েছে परमेश्वर भगवाনের পরিচালনায় জড়জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। कौन सा? माया दक्षिणा प्रकृति। नहीं, तात्पर्य अनुवाद पढ़ के समझ में आया था ना, ट्रांसलेशन पढ़ के कि कौन सा श्लोक है। परमेश्वर भगवान পরিচালনায় জড়জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। ভগবান জড়জগতে 3টি গুণে আরোপ করেছেন। এই গুণগুলির দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রকৃতির উপাদানগুলি বিভিন্ন বস্তুর প্রকাশ করে। ঠিক যেমন একজন শিল্পী লাল, হলুদ ও নীল এই 3টি রঙের মিশ্রণে नाना रकम छवि आकेन। तो इस तरह से हर एक चीज अलग अलग हो जाता है, अलग अलग। अभी आप ये लाल चश्मा पहनेंगे, हर एक चीज लाल दिखेगा। अब येलो चश्मा पहनेंगे, हर चीज येलो दिखेगा। उसी तरह व्यक्ति अगर रजोगुण में रहेगा वही चीज रजोगुण में देखेगा, सतोगुण में रहेगा तो वो वही चीज सतोगुण में रहेगा, तमोगुण में रहेगा वही चीज तमोगुण में देखेगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, सोचिए क्या बोले अभी। ओके, सतोगुण में अगर कोई व्यक्ति है, कोई औरत को देखा तो क्या बोलेगा? मात्रवत परिदारेशु परिद्रव्येशु लोस्त्रावत।
ऐसे करके बोलेगा ना, सभी औरत माँ के समान है, उनको सम्मान करना चाहिए। हाँ, कोई रजोगुण में देखेगा तो क्या करेगा, भोग करने का प्रयास करेगा, उसी सेम सिचुएशन में वो सोचेगा ये भोग्य वस्तु है मेरा। कोई तमोगुण में देखेगा तो आई डोंट नो क्या होगा, तो वही माता को तमोगुण में देखेगा तो कुछ गलत सोचेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम चीज वैसे ही माया के वश में आकर अलग अलग गुण में रहकर व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। मैं फिर से ये लाइन पढ़ रहा हूं, शायद इस बार क्लियर होगा। এই গুণগুলির দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রকৃতির উপাদানগুলি বিভিন্ন বস্তুর প্রকাশ করে। ঠিক যেমন একজন শিল্পী লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি রঙের মিশ্রণে नाना रकम छवि आंकें। तो गुण के मिश्रण तम गुण रजोगुण मिक्स होकर कुछ एक पेंटिंग होता है, बिकॉज उनका वैसे ही कॉन्शियसनेस है, तो ये मिश्रित होते हैं। হলুদ হচ্ছে সত্য গুণের প্রতীক, লাল রজগুণের প্রতীক এবং নীল তমগুণের প্রতীক। তাই বৈচিত্র্যময়, আচ্ছা ये হলুদ হচ্ছে সত্য গুণের প্রতীক, লাল রজগুণের প্রতীক। হলুদ হচ্ছে সত্য গুণের প্রতীক, लाल होते रजोगुण प्रतीक। लाल थोड़ा देख के समझ में आता है ना, वो रजोगुण वाला खून वाला, और नील होते तमोगुण प्रतीक। अभी ये कहाँ से मिला ये प्रभुपाद जी को, कोई बता सकता है? एक प्रभुपाद जी का पर्सनल अनुभूति या प्रभुपाद ऐसे ही बता रहे हैं? ये येलो सत्व गुण प्रतीक, हाँ, आप लोगों को क्या लगता है? भागवतम का 10वें स्कंद में भी प्रभुपाद ये बात तात्पर्य में लिखते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से मिला? शास्त्र से मिला, शास्त्र में शास्त्र में दिया है क्या? हम लोग होगा, प्रभुपाद तो सब वहीं से देते हैं। येलो सतोगुण में, और रेड कलर रजोगुण समझ में आ रहा है। लाल तो पैशनेट है, तो बोलते हैं ना कोई, रेड कलर इज पैशनेट कलर। ब्लू को बोला गया है तमोगुण। अरे कृष्ण, ये भी हमको हजम नहीं हो रहा है। ब्लू तो तमोगुण का यही है प्रतीक। अंधेरा कहाँ है? ब्लू बोला है, नील। ब्लू कलर अंधेरा होता है क्या? नील तो ऑलरेडी आप देखिएगा तो अंधेरा, जैसे बादल हो या कपड़ा हो, कुछ भी हो। डार्क है ना, ब्लैक के बराबर है, इसलिए डार्क ब्लू क्यों देख रहा है? नॉर्मल ब्लू को अंधेरा बोलिएगा क्या? स्काई को देखिए, अंधेरा लग रहा है क्या? आसमान को देखिए पहले ना, नीला बादल होगा तब ना प्रभु, ये तो है नहीं, तो बादल क्या, नीला आसमान भी तो होता है। एनीवेज, ये हमको समझ पूजा प्रभु, कोई पूजा पर्वण में हम लोग येलो का पहनते हैं, येलो ड्रेस। अच्छा, सतोगुण हो गया उसीलिए। स्काई ब्लू है तो मिक्स कलर है प्रभु, लेकिन जो नेवी ब्लू है वो असली कलर है। ओके, मे बी प्रभु पूजा में लाल भी तो पहनते हैं। कोई तर्क कर सकता है येलो फिर बोलेगा ये कैसे सतोगुण में हो गया? डर्टी फेलो। अरे हमने नहीं बोला। ओके, यस बंकिम प्रभु। प्रभु जी, नील तमोगुण होते तो भगवान श्री कृष्ण तो लीला बोलते हैं, नमो चंदन चोर नील कले बरो, श्री कृष्ण नील कले बरो, ताहले नील कैसे ये तमोगुण होगा? हरे कृष्ण। तो एनीवेज, मालूम नहीं, प्रभुपाद जी कोई शास्त्र से कोट किया होगा। हलुद হচ্ছে সত্য গুণ। इंग्लिश हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अरे म्यूट। हाँ बोलिए पंकज प्रभु। कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। पढ़िए माता जी। ज्योतिर्मय सीतामती कहाँ है? एब्सेंट, प्रेजेंट बात एब्सेंट माइंडेड। कमला राधे माता जी। हाँ, इंग्लिश से पढ़ूं? हाँ, सेम थिंग इज रिटन हियर। कहाँ से? एजिटेटेड बाय दीज क्वालिटीज। नहीं, कलर वाला लाइन पढ़िए। हाँ, येलो represents the quality of goodness, red represents passion, and blue represents ignorance. Anyways, তাই বৈচিত্র্যময় জড়জগতে এই তিনটি গুণের সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। एक्चुअली ये तीन कलर से बाकी कलर होते हैं ना, ये प्राइमरी कलर्स बोलते हैं ना, रेड ब्लू ग्रीन। हाँ, रेड ब्लू और क्या बोला, रेड ब्लू येलो, इन लोग का मिश्रण से बाकी कलर्स आता है, ऐसे ही कुछ शायद, आई डोंट नो, मेरा दिमाग लगा रहे। তাই বৈচিত্র্যময় জড়জগতে এই তিনটি গুণের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়, যা 81টি বৈচিত্র্যময় মিশ্রণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 3 × 3 9, 9 × 81, মানে
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया ना 3p2 3 into 2 into 1 नहीं ठीक है, अलग अलग 81 केसेस हो सकता है, माने रेड ब्लू रेड ग्रीन नहीं प्रभु, इट्स क्लियरली रिटन हियर 3 into 3 equaling 9, then 9 into 9 10 equaling 81. 3 या 9 और 9 में 81 होता है। वो तो होता है मालूम है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? यस निर्गुणा नीलमणि माता जी। प्रभु जी एक्चुअल में टेक्सटाइल डिजाइनिंग कोर्स मैंने किया था, उसमें बताया जाता है 3 बेसिक कलर होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट से इनमें वेरिएशन दिया जाता है। तो वो एक सर्कल बनवाया गया था और 81 कलर निकलते हैं उससे, मतलब ब्लैक व्हाइट कलर मिक्स करते रहेंगे, पीला रेड से एक कलर मिलेगा, उसमें फिर व्हाइट मिक्स कर देंगे, फिर एक नया कलर हो जाएगा। तो वो चीज इधर मतलब मेरे को तो मैंने हाँ वही अलग अलग मैंने रजोगुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये करके टोटल 81 केसेस हो सकता है ना? तमोगुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तमोगुण ऐसे कुछ ऐसे करके टोटल 81 केसेस हो सकता है। ओके, तो আগে জড়শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন বদ্ধজীব 81টি বিভিন্ন বৈচিত্র্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানে हम लोग का 81 सिचुएशंस हो सकता है कि हम थोड़ा तमोगुण में थोड़ा कम, रजोगुण में थोड़ा ज्यादा और सतोगुण में बहुत। और जब दिन आगे बढ़ेगा सतोगुण कम घट जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा, तमोगुण तो कम ही रहेगा। फिर जब शाम को आएगा तमोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण घट जाएगा, सतोगुण तो रहेगा ही नहीं। ऐसे अलग अलग केसेस समझ में आ रहा है सबको? ओके, हाँ बोलिए प्रभु। उसमें कितना मात्रा कौन से जीव में डालना है, तमो वाला कितना डालना है, रजो वाला कितना डालना है, ये जड़ा प्रकृति निर्धारित करती है, ऐसा है प्रभु? नहीं, वो हम लोग के ऊपर है। वो क्या निर्धारित करेगी? गुण ये अपना स्वतंत्रता इस्तेमाल करके हम लोग, वाह, तो फिर तो स्वतंत्रता चला गया। अगर ये चीज भी अगर माया देवी निर्धारण करेगी तो हम लोग का फिर क्या करेगा? हम लोग क्या करेंगे? फिर तो रोबोट हो जाएंगे। हम लोग कौन सा गुण में रहेगा ये अपन का हाथ में है। हम अगर सतोगुण में रहना चाहते तो ये हमारे हाथ में है। वो तो खिलाएगी, देखिए वो तो पपेट वाला पपेटियर तो करेगा ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आप सतोगुण में रहना चाहते हैं, सतोगुण का कार्य सतोगुण सोच में ऐसे, तो दैट इज इन योर हैंड्स। लेकिन प्रभु तो जन्म लेता है जीव, वहीं से शुरू हो जाता है ना प्रभु, कहाँ जन्म लेना है, कहाँ जाना है, इसको वो अलग है। वो तो पूर्व जन्म के कार्य की वजह से है, वो भी आपके हाथ में ही है। भगवान को कभी ये सब बोल नहीं सकते भगवान ने हमको इस घर में भेजा, ये तमोगुण के घर में भेजा, नहीं। वो भी तो क्योंकि आई डिजर्व दैट, मैं तमोगुण नहीं था तो उसे तमोगुणी घर में भेजा। हर एक जगह में ये चीज तो हम लोग डिसाइड करते हैं, नहीं तो हस्तक्षेप हो जाएगा। ओके, यस हिरण्य गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन ये हम लोग को अभी सोचेंगे ये कोई तमोगुण का आदमी है, वो साथ साथ वो सत्य गुण का काम नहीं कर सकता है। वो कोशिश करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसका एक गुण डिजायर करना है, डिजायर करना पड़ेगा, डिजायर करना, और उसके साथ कोशिश भी रहेगा, उसका भी टाइम लगेगा। लेकिन हाथ अपन का हाथ में है। मैं आई वांटेड टू से इट इज इन आवर हैंड्स। यू कैन नॉट से दैट इट इज इन दुर्गा देवी ने मेरे को फंसा दिया, नहीं। वो फंसाने का काम तीनों ही है। दुर्गा देवी के पास सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण, तीनों चीज है। अभी आप किस में फंसेंगे ये हमारे हाथ में है। बंकी प्रभु। प्रभु जी, ये रामधनु वाद्य कौन से ऋषि है, कौन बनाता है? ये तो भगवान श्री कृष्ण का है, ये तो सत्वगुण का प्रतीक है रामधनु। हरे कृष्ण प्रभु। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा कि एक वुमन को देख करके कैसे डिफरेंट टाइप्स के विचार आते हैं लोगों के मन में, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो तो दैट इज नॉट पासिंग अवे, दैट इज देयर विद इन यू। अभी जो पढ़ रहे हैं कि सुबह एक होता है, फिर दिन को कुछ और हो जाता है, शाम को कुछ और आता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट ऑन व्हाट बेसिस इट हैपेंस व्हेन यू सी ए वुमन, different type of feeling comes in? Depends on consciousness. Seeing a woman, if I am, मेरा प्रीडोमिनेंट, देखिए हर एक व्यक्ति को 3 गुण ही प्रभावित करता है। बट ये हम लोग कल ही भक्ति शास्त्र में पढ़ रहे थे, कोई एक गुण होता है जो प्रीडोमिनेटिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कोई व्यक्ति को बोल सकते हैं आप मिस्टर क्या बोले, कालूराम, ठीक है, मिस्टर कालूराम, सतोगुण तमोगुण रजोगुण तीनों ही फ्लक्चुएट होते रहता है उनका। लेकिन बोल सकता है कि
प्रीडोमिनेटली तमोगुनी व्यक्ति है, बोल सकते ना ऐसे, क्योंकि मैक्सिमम कार्य इनका खाना पीना, इनका संगत, इनका सोच, इनका व्यवहार तमोगुण जैसा है, हो सकता है ना। लेकिन तमोगुनी व्यक्ति भी तो थोड़ा कभी कभी सतोगुण हो जाता है, थोड़ा रजोगुण में आ जाता है, तो मिश्रित हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द गुणास विल बी प्रीडोमिनेटिंग। Am I understood? हाँ, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, कई बार हम लोग नहीं चाहते हुए भी उस गुण में आ जाते हैं, तो कैसे होता है ये? हम लोग का मन नहीं रहता तब भी उस गुण में आ जाते हैं। देखिए, ये दो चीज हो सकता है। हालांकि एक तो हो सकता है कि सूक्ष्म अवस्था में मन चाह रहा था आगे, जैसे ध्रुव महाराज नहीं चाहता है कि वो बड़ा राज्य अभी, क्योंकि भगवान को दर्शन कर लिया, लेकिन अभी वो आगे चाह रहा था ना, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा चीज हो सकता है, परीक्षित महाराज नहीं चाह रहा था कि वो पानी नहीं पिलाएगा, सॉरी समीक ऋषि नहीं चाहता था कि वो, अगर समीक ऋषि जागा हुआ था तो पानी पिला ही देता था परीक्षित महाराज को। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का इच्छा से ये हुआ, भगवान जबरदस्ती उनसे एक गलत कार्य करवाया, क्योंकि एक बड़ा उद्देश्य था। तो ऐसे भी हो सकता है। विल ऑफ प्रोविडेंस लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। सो अगर ना चाहते हुए भी, माय डिजायर इज नॉट देयर, बट स्टिल वो कार्य कर लिया, तो दीज कुड बी द पॉसिबल रीजंस। नरेंद्र सरोवर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कि इच्छा तो अपने हाथ में है, तो इच्छा नहीं था कि हम उसको नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी उसको मुक्का मार दिया। तो इसके पीछे बैकग्राउंड हो सकता है कि आगे इच्छा था, या ऐसे भी हो सकता है मेरा इच्छा ही नहीं था, लेकिन भगवान ने हाथ पकड़ा और उसको मुक्का मार दिया। दैविक क्रम, बांग्ला लिखा है दैविक क्रम, दैवी इच्छा है, विल ऑफ प्रोविडेंस। जबरदस्ती भगवान ने हमसे गड़बड़ करा दिया, कोई उद्देश्य होगा। बोलिए, सॉरी प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हम लोग को रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जैसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त उठेगा तो वो तो सतोगुण है ना, तो उस समय में जो क्रिया हम लोग करेगा तो सतोगुण में रहेगा धीरे धीरे, तो वही अभ्यास दे दिया कंटिन्यू रहेगा, तो हम लोग रजोगुण तमोगुण रहते हुए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मंगला आरती में जाना है हमको, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, वो सतोगुण है, तो मुनि उसमें करते आ रहा है। तो ये चीजें हम लोग अभ्यास नहीं करेगा तो सतोगुण तमोगुण रहेगा, उसमें फर्क तो आएगा एकदम। ठीक है, ये सुबह सुबह मंगल आरती पूरा करने से क्या होगा, चांसेस हाई है कि आप इसको बहुत, जैसे सोचिए, पहले अगर ओडोमॉस लगा लिया, ठीक है, आपको मालूम है आप सुंदर बन जाएंगे, जंगल में जाएंगे, मच्छर बहुत होता है, आगे से ओडोमॉस लगा लिया तो क्या होगा, सारा दिन आपको मच्छर काटेगा नहीं, लेकिन ओडोमॉस आगे लगाना पड़ेगा ना। वैसे सुबह अगर सोचिए अच्छा से मंगल आरती हो गया, 16 माला जप हो गया, गुरु पूजा हो गया, भागवत श्रवण हो गया, सुबह ब्रेकफास्ट प्रसाद ले लिया, अभी हम ऑफिस में निकला रजोगुनी जगह में, लेकिन आप सतोगुण में रहेंगे। क्यों? रजोगुण की जगह में जाने के बावजूद आप सतोगुण में रहेंगे, क्यों? बिकॉज अच्छा से ओडोमॉस लगा के आए। लेकिन उसका भी इफेक्ट चला जाएगा। रजोगुण की जगह में आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आस्ते आस्ते ओडोमॉस का इफेक्ट चला गया, फिर क्या हुआ, शाम तक ओडोमॉस का इफेक्ट शरीर में था ही नहीं, थोड़ा थोड़ा मच्छर काटने लग गया, फिर घर में आया तो फिर से संध्या आरती किया फिर से आपने ओडोमॉस लगाया ऐसे कुछ समझ में आ रहा है मेरा एग्जाम्पल? बहुत क्रूड एग्जाम्पल है लेकिन हाँ, फिर से आपने संध्या आरती करके थोड़ा भक्ति में हो गया, भागवत पाठ किया एक्सेट्रा ऐसे कुछ। हिरण्य में गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे सूर्य का जो है उनका लिए ही तो ब्रह्म मुहूर्त है और दोपहर है और संध्या भी है, तो वो बड़ा एक एंटिटी है, वो हम लोग को भी अफेक्ट करता है और हमारा परिवेश भी हमको अफेक्ट करता है और हमारे अंदर में भी जो गुण है वो भी अफेक्ट करता है, तो सब मिल के होता है। यस यस, मेनी फैक्टर्स, यस ट्रू। ओके आगे बढ़ते हैं। वो टाइम हो गया, वाह वाह, अभी तो शुरू किया था, अभी खत्म भी हो गया और ये पैराग्राफ कम से कम खत्म कर लेते हैं बीच में। ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था क्या? 2 लाइन बाकी। ये हो गया ना? नहीं, थोड़ा बाकी है, वो 81 तक हुआ है, 9 into 9 81। ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। जरा शक्तिर प्रभावे, प्लीज काहुत पिन दे दीजिए तब तक। मोहाच्छन्न बद्धजीव 81টি বিভিন্ন বৈচিত্র্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, জড়জগতের উপর অধিপত্য করতে চায়, ঠিক যেমন পতঙ্গ আগুনকে উপভোগ করতে চায়। এই মোহাচ্ছন্ন হয়ে বদ্ধজীবের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের
বিস্মৃতির ফলে বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা জরা প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ইন্দ্রতৃপ্তির চেষ্টায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়, কিন্তু চিৎশক্তির প্রভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করার ফলে সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত হয়ে তার সেবায় যুক্ত হয়। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल। जय।